اور اب خبریں تفصیل سے۔ سری نگر شہر میں پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو چکا ہے۔ مختصر مدت تک خاموشی کے بعد ملیٹنٹ پھر سے ایسی کارروائیاں انجام دے رہے ہیں۔ جموں کشمیر پولیس میں ڈرائیور کے طور پر کام کرنے والے پولیس اہلکار علی جان کو آج الگ صبح لبے سڑک گولی مار دی گئی۔ ملیٹنٹوں کا نشانہ بنے زخمی پولیس اہلکار کو اسکمز منتقل کیا گیا، لیکن اس کی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔ اسی بیچ جائے واردات پر جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے۔ ہمارے چیف کرسپونڈنٹ پرویز بٹ کی دیکھیے خاص رپورٹ۔ زارو خطار رو رہی یہ خاتون زخمی پولیس اہلکار غلام حسن ڈار کی ہمشیرہ ہے۔ ڈار صبح سویرے اپنے دفتر جا رہے تھے، تبھی یہاں ملیٹنٹ پہنچے اور انہیں گولیاں مار دی۔ بتایا گیا ہے کہ حملہ آور غلام حسن ڈار کا ان کے گھر سے ہی پیچھا کرتے آ رہے تھے۔ اس علی جان روڈ پر آئیوا برج پر پہنچتے ہی ڈار پر تابڑ توڑ گولیاں برسا دی گئی، جس کے نتیجے میں ان کے سر پر بھی چوٹیں آئی اور انہیں اسکمز منتقل کیا گیا۔ ڈار خون میں نہا چکے تھے، ان کی بائک اور ہیلمٹ سڑک پر پڑے رہے۔ ڈار پی سی آر سری نگر میں ڈرائیور کے طور پر برسر کار تھے اور پی سی آر ہیلپ لائن نمبر کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ ڈار کی بہن اور رشتہ دار جب یہاں پہنچے تو اس جائے وقوع پر جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے۔ اس واقعے کے بعد پولیس کے بشمول جوائنٹ فورسز نے علاقے کا محاصرہ کر کے تلاشی کارروائیاں شروع کر دی۔ پولیس اس علاقے میں سی سی ٹی وی فوٹیج ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہے، لیکن غیر رہائشی علاقہ ہونے کی وجہ سے سی سی ٹی وی فوٹیج جیسا ثبوت ہاتھ لگنا مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ غلام حسن ڈار ایک بیٹی کے باپ ہے اور انہوں نے اپنا گھر بنانے کے لیے حال ہی میں بینک سے 10 لاکھ روپے قرض لیا ہے۔ یہ بالکل سراسر غلط ہے، یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ اگر اس کے ہاتھ میں گن تھا، یہ ملٹنڈو کے ساتھ یا کوئی سول کے ساتھ یا کوئی پڑوسی کے ساتھ مطلب گولی مار رہا ہے، کوئی کسی کو ستا رہا ہے، کسی کو پیسے کھا رہا ہے، تب تو یہ صحیح ہے۔ جب یہ بیچارہ صبح نکلا تھا، مطلب اس کو گھر چلانا ہے، یہ گاڑی چلا رہا ہے، وہ گاڑی چلا رہا ہے، بس یہی کام ہے اس کا، صبح نکلتا ہے شام کو آ رہا ہے۔ یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ ہمارے علاقے میں 100-200 پولیس والا ہے ہمارے کانسٹیچوئنسی میں۔ ہاں، اگر وہ مارنے سے آزادی ہوا تو تب تو ٹھیک ہے، مارا ہوا بیچارے، باقی لوگ تو آرام کرے گا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ مارنے سے آزادی ملے گا تب تو ٹھیک ہے، تب تو بالکل ٹھیک ہے۔ ذرائع کے مطابق ملیٹنٹوں کو موقع واردات تک پہنچانے والے شخص نے پولیس کے سامنے خود سپردگی کر دی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اسے ملیٹنٹوں نے بندوق کی نوک پر رکھ لیا تھا اور وہ انہیں یہاں تک لانے پر مجبور تھا۔ تاہم پولیس نے ابھی تک اس معاملے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ ملیٹنٹوں نے یہاں پہ حملہ کر کے ایک جموں کشمیر پولیس کا جو اہلکار ہے جس کی شناخت غلام حسن کے طور پہ ہوئی ہے، اس کو فائرنگ کر کے اس کو شدید طور پہ زخمی کر دیا گیا ہے اور انہیں اسے زخمی حالت میں ہی جو ہے اسکمز ریفر کر دیا گیا ہے، جہاں پہ اس کا علاج اس ٹائم چل رہا ہے۔ علاقے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکورٹی فورسز نے پورے علاقے کو پوری طرح سے کارڈن آف کر دیا ہے اور جو سرچ آپریشنز ہیں وہ لانچ کر دیے گئے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جموں کشمیر پولیس کے اہلکار بھی ہیں یہاں پہ اور ساتھ ہی میں جو سی آر پی ایف کے اہلکار ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ یہاں پہ ایک بات یہ بتانا ضروری ہے یہاں پہ اس ایریا کے بارے میں کہ اس ایریا میں اس سے پہلے بھی ایک حملہ ہوا تھا کچھ مہینے پہلے، جب جو نان مسلم ٹیچرز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، تو اس حوالے سے اس ایریا کو کافی سینسٹیو مانا جا رہا ہے اور کڑے سیکورٹی کے انتظامات یہاں پہ رہتے ہیں۔ سری نگر سے پرویز بھٹ، نیوز 18 اردو کے لیے۔ پلوامہ میں ملیٹنٹوں کے عزائم کے خلاف پوسٹر لگائے گئے۔ قصبہ پلوامہ کی مرکزی جامع مسجد کے پاس یہ پوسٹر باہری دیواروں پر لگائے گئے۔ ان پوسٹرز میں لکھا گیا کہ ارجمند گلزار نامی ملیٹنٹ پاکستان میں بیٹھ کر پلوامہ کے نوجوانوں کو ملیٹنسی کی طرف راغب کر رہا ہے اور نوجوانوں کا مستقبل تاریک کرنے کی طاق میں بیٹھا ہے۔ ان پوسٹروں میں یہ بھی لکھا کہ اسلام جہاد کے نام پر غیر مسلموں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور مذہب میں یہ سراسر حرام ہے۔ تاہم پوسٹروں پر کسی بھی جماعت کا نام نہیں لکھا گیا ہے۔
स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से आज पुलवामा जिले के चंदगाम और लासीपुरा इलाकों में छापामारी अमल में लाई गई। तहकीकाती एजेंसी ने मोबाइल और सिम कार्ड डीलरों के घरों पर छापा मारा। इस टीम ने चंदगाम में जुनैद मंजूर मीर और लासीपुरा में आबिद नजीर मीर के घरों पर छापा मारा और तलाशी कार्रवाई चलाई गई। साथ ही साथ दोनों से काफी देर तक पूछताछ भी की गई। इस दौरान एसआईए की टीम ने मजीद पूछगछ के लिए चंदगाम के जुनैद मंजूर को अपनी तहवील में ले लिया। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सैयद बशारत बुखारी ने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन की हतमी रिपोर्ट जमहूरियत और तरक्की के दावों की नफी करती है। साबिक वजीर कानून न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना है कि पार्लिमानी हलकों की असर-ए-नौ हदबंदी इंतहाई घटिया तरीके से की गई है। इस मामले में कमीशन की तरफ से लापरवाही पर नाराजगी जाहिर करते हुए सैयद बशारत बुखारी ने कहा कि कमीशन की हतमी रिपोर्ट इंतहाई मायूस कुन है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि चुनाव के अमल पर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। बशारत बुखारी के मुताबिक आवाम के साथ साथ मुंतखब नुमाइंदों को भी बहुत नुकसान उठाने पड़ेंगे। है कि वो चीज़ नहीं हुई है। मतलब किस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी हैं, किस तरह से बाउंड्रीज रिड्रा हुई हैं, बहुत जगहों पे तुक ही नहीं लगता है। मतलब अक्ल से बईद है बातें। और क्यों किया गया ऐसा, क्या किया गया, इससे क्या फ़र्क, मतलब क्या होगा। मतलब मैं आपको बताऊंगा, एक कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी ये शांगस थी, वो 4 हिस्सों में तकसीम हो गई, पूरे 4 हिस्सों में। अब जो वहाँ पे लोग एमएलए थे, पहले एक ही तो नहीं था, थे, उन सब का एक ताना बाना था, एक सिस्टम था, एक कंटिग्यूटी थी कॉन्स्टिट्यूंसी की, और एक डेवलपमेंटल प्रोसेस वहाँ पे ऑन था पिछले मान लीजिए 20 साल से, 10 साल से वो एक चल रहा था। और उन लोगों जो भी वहाँ पे रहते हैं या जिन्होंने नुमाइंदगी की है, उनको भी जहन में एक नक्शा था कि आगे कैसे बढ़ना है। अब आप ये कर लीजिए कि मान लीजिए एक वहाँ पे स्कीम है, वाटर सप्लाई की स्कीम है मिसाल के तौर पर, उसका सोर्स एक कॉन्स्टिट्यूंसी में गया, उसका फिल्ट्रेशन प्लांट दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में गया, उसका ओएचटी तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, और पानी पीने वाले चौथे वाले हैं। अब देखिए कितनी दिक्कतें हो जाएंगी लोगों को। इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, पॉपुलेशन का तो ख्याल रखा ही नहीं इन्होंने, वो तो है नहीं। बाकी पैरामीटर्स का अपने हिसाब से ख्याल रखा जो हमारे हिसाब से मेल खाते ही नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो इसमें ये होनी चाहिए कि इनको देखना चाहिए था कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज डेवलप्ड हैं, कौन सी अंडर डेवलप्ड है। अगर डिलिमिटेशन सिर्फ लोगों की बहबूद के लिए है तो ये तो बहबूद के खिलाफ है। तो आपका जो इसका मतलब वो जो खमीर है इसकी, जो रूह है इसकी, वही तो खत्म हो गई। सो देयर आर प्रॉब्लम्स कि जो लोगों को आगे फेस करना होगा, और खासतौर से उनको फेस करना होगा जो मैं ये नहीं कहूँगा जो इलेक्शन लड़ेंगे, मैं ये कहूँगा जो जीत जाएंगे, उनको बड़ा मसला होगा, उनको बड़ा चैलेंज है। सीपीआईएम के सीनियर लीडर और पीएजीडी के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने कहा कि उन्हें हदबंदी कमीशन से कोई तवक्कुआत नहीं थी, क्योंकि कमीशन ने एक्ट के हिसाब से अपना काम नहीं किया और उसकी रिपोर्ट आवाम के ख्वाहिशात के खिलाफ है। तारगामी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में फ़िरक़ावाराना क़ुव्वतों को जवाब देने के लिए सियासी पार्टियों को एकजुट होकर काम करना चाहिए, और अगर चुनाव मुनक़्क़िद कराए जाते हैं तो पीएजीडी इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से मीटिंग तलब करके सभी पार्टियों से राय मांगेगी। डिलिमिटेशन कमीशन से तवक्कुआत नहीं थी, इसलिए नहीं थी क्योंकि ये कानून के दायरे के अंदर हुआ नहीं, डिलिमिटेशन एक्ट के दायरे के अंदर हुआ नहीं। ये उस कानून के दायरे के अंदर हुआ जिसको पास किया पार्लियामेंट ने तब जब यहाँ हर किस्म की रुकावटें खड़ा कर दी, अमलन कर्फ्यू नाफिज किया और सैकड़ों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया, और टेलीफोन की सहूलियात भी कहीं नहीं थी, जम्मू में भी नहीं, कश्मीर में भी नहीं। मुझे ये बताइए, सरकार पार्लियामेंट मेरे बारे में फैसला कर ले, आपके बारे में, जम्मू के बारे में फैसला कर ले, और हमें पूछे बिना हमें क्रैकडाउन में रखकर, क्या वो इंसाफ पर मुबनी होगा वो फैसला? हमें एक साथ मिलना होगा। इख्तिलाफ राय हो सकता है, अलग अलग पार्टियां हो सकती हैं, अलग अलग नुक्ते निगाह होगा, लेकिन अभी रुकावटें खड़ी की गई है। उन रुकावटों को दूर करने के लिए हम सब का एक इत्तेहाद चाहिए, आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढना है, एक साथ मिलकर, कोई ज्यादा करे कोई कम कर ले। रहा सवाल चुनाव का,
अगर आपको यकीन है चुनाव होगा तो उस वक्त पीएचडी बैठेगी क्या करना है। हदबंदी कमीशन की हतमी रिपोर्ट में गुलबर्ग हलके के हाजीबल और खैपुरा को वागोरा संग्रामक कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जम करने पर नाराजगी पाई जा रही है। गुलबर्ग में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने हदबंदी कमीशन के इस फैसले पर बरहमी का इजहार किया। पीडीपी ने भी इस इक़दाम की सख्त मुखालफत करते हुए नुक्ताचीनी की। पीडीपी गुलबर्ग हल्के के यूथ सदर एडवोकेट अली मोहम्मद ने हदबंदी कमीशन से मुतालबा किया कि टंगमर्ग के खैपुरा और हाजीबल इलाके को हल्के इंतखाब गुलबर्ग में वापस जोड़ दिया जाए। अराउंड छोटे बड़े लेके इसमें 22 कम से कम विलेजेस आते हैं, वो उन विलेजेस को जो है एक्सक्लूड किया गया था, उसको क्रीरी और वागुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है फिक्स किया गया है। हमारी यही अब डिमांड रहेगी, हमारा यही अब मुतालबा है कि जो ये हमारे पटवारी सर्कल खैपुरा और पटवारी सर्कल हाजीबल है, इनको रेस्टोर किया जाए, फिर से इनको इंक्लूड किया जाए गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में, ताकि जो गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी की जो एसेंस है वो बरकरार रहे। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के शरणार्थियों ने हदबंदी कमीशन की इस सिफारिश का खैर मकदम किया है, जिसके तहत इस बिरादरी के लोगों के लिए असम्बली में एक नशिस्त मखसूस रखी गई है। रेफ्यूजियों की एक तंजीम के ओहदेदारान आज जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शरणार्थी कई बरसों से इस हक से महरूम रखे गए थे, ताहम हदबंदी कमीशन की जानिब से उठाया गया ये कदम इस समाज को सियासी तौर से बाइख्तियार बनाने में मददगार साबित होगा। करना चाहते हैं और दूसरा गवर्नमेंट को अपील करना चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम सीटें दे के हमारे पूरे फुल जस्टिस किया जाए हमारे साथ। अब तो रिकमेंडेशन कर दी है डीलिमिटेड कमीशन ने, अब तो गवर्नमेंट के पास कोई हिच नहीं है, उन्हें करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने दावा किया कि उनकी पार्टी आइंदा असेंबली इंतखाबात में 50 से ज़्यादा सीटें हासिल करके यूटी में हुकूमत बनाएगी। वो आज जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस के एक लीडर राज शर्मा का बीजेपी में इस्तकबाल किया। रविंद्र रैना ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर के लिए आवाम दोस्त पॉलिसियों की वजह से न सिर्फ सियासी लीडरान बल्कि आम लोग भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। है कि आने वाले असेंबली इलेक्शंस में 50 से ज्यादा सीटें जीतकर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, जम्मू कश्मीर में भी मोदी साहब की सरकार बने और जम्मू कश्मीर को फिर से स्वर्ग के जैसा सुंदर जम्मू कश्मीर बनाने का हमारा लक्ष्य है। हर्षदेव सिंह समेत पैंथर्स पार्टी के कई लीडरों ने दिल्ली पहुंचकर आज आम आदमी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। याद रहे कि साबिक वजीर तालीम हर्षदेव सिंह पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन रह चुके हैं। उन्होंने पैंथर्स के सूबाई सदर रहे राजेश पंडगोत्रा और तर्जुमान गगन प्रताप सिंह के अलावा पुरुषोत्तम परिहार और सुदेश डोगरा के हमरा आप का दामन थाम लिया। पैंथर्स पार्टी के दीगर लीडरान भी आप में शामिल हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामान संजय सिंह ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान इन लीडरों का पार्टी में खैर मकदम किया। जो मूलभूत सुविधाओं से कई अरसे से वंचित हैं, उनको भी वो तमाम सुविधाएं मिल सके, भ्रष्टाचार का खात्मा हो सके और एक गुड गवर्नेंस जो हम अक्सर किताबों में ही पढ़ते हैं और जो यहां दिल्ली में इन्होंने करके दिखाया है, वो गुड गवर्नेंस जम्मू कश्मीर को भी मिल सके और जम्मू कश्मीर की तमाम समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब एक अच्छी सरकार वहां आए, भ्रष्टाचार खत्म हो और लोक राज सही मायने में स्थापित हो सके, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में करके दिखाया है। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।